So, hi friends, welcome back to our YouTube channel. So, today I came with one of the important candidates, and this candidate actually selected in the TCS. So, his name is SK Samim, and he's from the Techno College. So, now it's your opportunity to go through all the things that he used. Okay, means इस वीडियो में आपको complete information मिलेगा about his journey, when he have started the preparations, and how he have basically prepared for the interview, and complete आपको जानकारी मिलेगा. So make sure to go this video very carefully. I think your all doubt will be clear after watching this. So hi Samim, how are you? Hi, I am good. Yeah, How are you? yeah, I'm good too, bro. So Samim, first of all, thank you for joining our conversation. Okay, it will be really a engaging session, I hope. Thank you. Yeah. So Samim, just give me a brief intro about you, that कौन से कॉलेज से आते हैं, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, एंड योर ऑल थिंग्स. Hi, I am Seksami Mali. I am final year BTech student in CSEIML from Techno Engineering College, Banipur. Recently, I got selected for TCS Ninja role. My journey was quite interesting because I was not fully prepared for the exam, but I still gave the exam and cracked it. Yeah, nice. So it was, yeah, nice. So it was on campus or off campus opportunity? I think on campus. It was on campus for priority colleges. Yeah, priority college. Yes. So can you just tell me about your preparation journey, that when you have started for the preparation of NQT? क्योंकि बहुत सारा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन एक्चुअली आफ्टर, मींस जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो गया तब, या उसके पहले ही आप लोग स्टार्ट कर दिए थे? इफ यू कैन गिव सम आइडिया टू आवर व्यूअर. I was not that much serious about the exam. मैंने एग्जाम के 2-3 वीक पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. मेनली फ्रॉम यूट्यूब, नॉलेज गेट, कैंपस मॉन्ग यूट्यूब वीडियोस, एंड ऑल्सो फ्रॉम योर व्हाट्सएप ग्रुप, the free resources you have shared during that time. मेनली मेरा क्वांट एंड लॉजिकल पार्ट ठीक से प्रिपेयर हो पाया था. भारवाल वाज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड. So sometimes I feel unprepared and hesitate to give the exam, but I still go and attempt it, and now I have received offer letter. Yeah, nice. Yeah, congrats. So those who have doubt that whether, means I am getting just 15 minutes or sorry, 15 days or 20 days, do you think that is it sufficient to crack this exam, 15 days or 20 days? Yeah, if you use it with a proper plan, still it is crackable. You can easily get this year. So friends, you can clearly say this is one of the candidates who have been selected and just he have prepared for 15 or 20 days. So the main thing that I want to tell you here, that means I'm not saying that just prepare for 15 days or 20 days, because everyone have different capabilities and all those things. But yeah, जिनको लगता है कि बहुत देर हो चुका है, I haven't started the preparation. Though I think if you are following my YouTube channel there, I have, मैंने बहुत बार आप लोग को बोला कि start preparing for the NQT before 1 and 2 month. बट स्टिल अगर आपके पास अभी तक स्टार्ट नहीं किए एंड आपके पास कम ही टाइम है, जस्ट फोकस, उतना भी हार्ड नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो. ओके, जस्ट प्रिपेयर 15 और 20 डेज, दैट इज इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम. ओके, या सो Yeah. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल नॉलेज. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो गया होगा, तो रिसोर्सेस आपने बता दिया. नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, दैट हाउ वाज योर एग्जाम, मीन्स जब आप एग्जाम देने गए थे. सो खासकर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्टी, मीन्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश. कैसा था क्वेश्चन लेवल, कैसा था, इस पे थोड़ा कुछ जा रहे, क्योंकि बहुत लोग का अभी तक एग्जाम शेड्यूल नहीं हुआ. सो इफ यू कैन गिव सम हाईलाइट देयर. Questions for quant part, I would say the question level was medium to tough, and for logical and the verbal part, it was moderate. But the coding part was tough for me. या ओके, कोडिंग पार्ट में मैं आता हूँ. जस्ट लिटिल बिट इफ यू कैन टॉक अबाउट द इंग्लिश पार्ट. ओके, क्योंकि इंग्लिश में बहुत लोग का डाउट रहता है. तो आई थिंक अगेन टीसीएस इज रिपीटिंग द सेम पैटर्न, दैट इज पैसेज. पैसेज से शायद ज़्यादा क्वेश्चन है, Yeah. और इफ यू कैन हाईलाइट सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश. इंग्लिश के लिए मैंने उतना प्रिपेयर नहीं किया था. मेनली क्वांट और वर्बल प्रैक्टिस करके गया था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा इंग्लिश वाला पार्ट नहीं हो पाएगा शायद. फिर भी मैंने 16 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और
वहाँ पर मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही था मैक्सिमम क्वेश्चंस। Yeah, so actually means many of the candidates have still exam related to NQT and they have doubt related to numerical ability. बहुत लोग का डाउट होता है कि बहुत सारा formula I think you have to remember. There are lots of I think more than 15 plus topics are there. SI, CI, profit loss, time and work. So how you manage all those things means किस तरह से आपका management था to all these topics? आई वॉज प्रैक्टिस पैटर्न वाइज। मैंने रैंडमली कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, एक पैटर्न के हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। Yeah, nice. So one thing I want to add here, a point to all of my viewer that आप एक वही proper planning के साथ कीजिए, okay? Means the first of all note down all the important topics that you have to go with. Means you should familiarize with the TCS syllabus, okay? Which I've already shared in WhatsApp or Telegram group. Just you can go through it and also preparation material and lots of stuff, free material I have shared. So you can just follow that and एक आप proper planning बनाए that on what day you have to read what. So अगर आप proper planning या के साथ कीजिएगा then 10 to 15 days are enough. But if you will या सॉल्व जस्ट रैंडमली क्वेश्चन कहीं आप कभी एसआई का कर रहे हैं कभी प्रॉफिट लॉस कभी टाइम एंड वर्क सो दैट विल नॉट वर्क सो एक प्रॉपर प्लानिंग से सभी टॉपिक्स पे ध्यान दें सो थैंक्स अमीन नाउ लेट वी कम टू द कोडिंग पार्ट बिकॉज कोडिंग इज ऑल्सो प्ले क्रिटिकल रोल स्पेशली दिस ईयर बिकॉज दे गोना प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग टू सो कोडिंग का प्रिपरेशन कैसा था आपका और क्या रिसोर्सेज आपने यूज किया और कुछ इस पे पर बात करें तो कोडिंग के लिए मैं मेरा मेन फोकस था फॉर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसमें भी एरे एंड स्ट्रिंग के ऊपर मेरा फोकस ज्यादा था मैक्सिमम, क्योंकि एरे और स्ट्रिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है टीसीएस में। द क्वेश्चन लेवल फॉर द मीडियम इट वाज फ्रॉम स्ट्रिंग, एज आई रिमेम्बर एक स्ट्रिंग एनकोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। और जो इजी वाला क्वेश्चन था वो उसका लैंग्वेज मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था, मैक्सिमम टाइम वही वेस्ट हो गया था अपने एग्जाम हॉल में, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा। लेकिन वो एडे से था और मेरा एक तो टेस्ट केस पास हुआ था बस। क्या आपको कोई कंपाइलर इशू भी कुछ फेस करने को मिला या कंप्लीट हो रहा था, एरर आ रहा था, तो समझ नहीं पा रहे थे, तो दिक्कत हो रहा था। सो हाउ डिड यू मैनेज दिस मैंने एरर को समझने का कोशिश किया, मैक्सिमम जितना हो पाए सॉल्व करने की कोशिश की। या एक मैं बात करना चाहता हूँ ये हार्ड कोडेड या आउटपुट या हार्ड कोडेड मीन्स क्या ये काम करता है टीसीएस में टेस्ट केस पास करने के लिए हाँ करता है, मैंने सुना कि मेरा कोई दोस्त था, उसने भी इफ एल्स ईफेल्स यूज या करके इफ एल्स एक दो टेस्ट के पास कर दिया, तो हाँ, उसका डिजिटल में आ गया था। या दैट्स द मेन थिंग आई वांट टू टेल फ्रेंड्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि समीम ने बात किया कि मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस स्पेशली अगर आप फ्रेशर्स है एंड इफ यू डोंट नो समीम यू आर फ्रॉम विच बैकग्राउंड सी एस सी आई एम एल। you are from CSC AIML or artificial intelligence. हाँ So if you are from I mean non-CS background like EC, electrical and other things, then basically मैं कहूँगा कि आप लोग अगर कोडिंग ज़्यादा नहीं किए हैं then focus on just array, string और you can just follow some other important approach that is two pointer approach या bit manipulation just normal रखें. Don't go for DP and graph because this is not the correct time to attempt this. And if you will means follow these things now एक क्वेश्चन तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा and if you can balance the FT section then it will quite easy to clear. Okay, am I right? यस है। या सो अगर आपको मीन्स अभी आपको पता है कि 10 दिन में आप डीपीओ ग्राफ को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं अगर आप हाँ ऑलरेडी कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट बट इफ यू डोंट हैव टाइम देन डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस स्टफ ओके सो दोज हु हैव एग्जाम फर्दर आई विल सजेस्ट दीज थिंग्स नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट कुछ क्वेश्चन कुछ आप रिकॉल कर पा रहे हैं अगर एक पहले एक आपने बोला आई थिंक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कुछ था एक और कुछ हाँ, स्ट्रिंग एनकोडिंग डिकोडिंग का था, जो मीडियम वाला क्वेश्चन था। और जो इजी क्वेश्चन था उसका लैंग्वेज मुझे थोड़ा समझ नहीं आता, कुछ कर्म किया करना था, कुछ वैनिश से हो जाता है, एरे का था एक क्वेश्चन, ओके याद नहीं आ नो रहा। नो इशू एक्चुअली मीन्स जिनको भी अगर चाहिए प्रीवियस ईयर तो 2025 और 2026 का भी मैंने बनाया हूँ सो जस्ट गो थ्रू इट आई थिंक आई हैव वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो सो यू कैन गेट पीडीएफ फॉर ऑल दोस थिंग्स या नाइस सो Samim, now let me come to the interview sections. Okay, so after how many days you got the interview call and कैसे आपको पता चला through college और through your mail? पहले तो कॉलेज से नोटिस आ गया था, एक एक्सेल शीट आया था, उसमें नाम था जिसका जिसका सिलेक्ट हुआ था। फिर टीसीएस से भी मेल आया 23 दिसंबर को कि मेरा इंटरव्यू ओके तो आपका सिलेक्शन किस रोल के लिए हुआ था निंजा या डिजिटल के लिए है। सॉरी किसके लिए हुआ था आपका
मीडिया रोल के लिए। या निंजा के लिए हुआ था? सो कैन यू टेल मी द अप्रोक्स द रेशियो, मीन्स कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था एंड कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अप्रोक्स हुआ था, इफ यू कैन रिकॉल? हमारे कॉलेज से 20-30 मैक्सिमम दिया था एग्जाम। और ओके, नो और इश्यू। उसमें तो, 5-6 जन का ही हुआ था। ओके, नाउ लेट मी मूव टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंटरव्यू। इट्स अराउंड आपका 1 मंथ में रिजल्ट आया था ना, हाँ हाँ। but TCS now have changed the complete strategy. Now within 1 week they are giving the interview, so that's the good thing. So you will get very less time. So prepare or focus on your interview. खासकर जिनका एग्जाम अच्छा जा रहा है. Okay. And if you want, you can also schedule the mock interview. That I will come to that part. Just I'm coming to that thing. So interview का जब आपको कॉल आया, so what are the documents you have to go with? And TCS सेंटर पे जाकर था ना, या आपका ऑनलाइन इंटरव्यू था? इट वाज एट टीसीएस सेंटर। या TCS सेंटर पे. सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू गो विद, एंड क्या प्रोसेस था बेसिकली? आप थोड़ा अगर बता कि एंट्री के बाद क्या क्या होगा, कैसा क्या अरेंजमेंट वगैरह था, इफ यू कैन हाईलाइट ऑन दिस पार्ट. All the documents which are required was mentioned in the email. There was mainly the all the mark sheet from 10, 12, last semester till last semester mark sheet, and your Aadhaar card and resume is the most important. रिज्यूमे. ओके, सो अगर किन्हीं के पास कोई करंट मार्कशीट, सपोज आई थिंक सम कैंडिडेट्स आर इन 8th semester एंड दे माइट नॉट गॉट द हार्ड कॉपी ऑफ द मार्कशीट, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? They can attest it from their principal or HOD. Yeah, okay. Now I think our viewer got the answer that अगर आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, no need to worry. You can just take the printout of digital copy and attest from your college. Okay, that will work. And teachers basically consider it because post joining also they will check or your marksheet means hard copy. So no need to worry. Just go with that. But yeah, जो 10th 12th का मार्कशीट है, ये सब तो आपको लेकर ही जाना है because you must be having all those. या सो इंटरव्यू पैनलिस्ट मीन्स बात करूँ फिर कैसा मीन्स प्रोसेस था? क्या आपको मीन्स रूम एलोकेट हुआ या आपको वेटिंग, कितना टाइम वेटिंग करना पड़ा, और क्या टेक्निकल या हमारे साथ विचार हुआ था, इसके बारे में मुझे अगर बात करें तो? हाँ, पहले तो मेरा सेकेंड शिफ्ट में इंटरव्यू था 2 बजे से। तो पहले तो बहुत वेट करना पड़ा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बहुत भीड़ था। उसके बाद आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर इंटरव्यू, उसके लिए बहुत वेट करना पड़ा था। मेरा 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो इंटरव्यू हुआ था लगभग 5 बजे के बाद हुआ था इंटरव्यू। और रूम एलोकेट हुआ। उसके बाद HR, टेक्निकल एंड मैनेजर एक ही पैनल में थे, तो एक ही साथ इंटरव्यू हुआ था। या नाइस. सो कैन वी, इफ यू कैन रिकॉल सम टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वेश्चन दे आस्क, और किस तरह से आपका मीन्स कुछ क्वेश्चन पे अगर आप बात करें तो कैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लोग? रिज्यूमे से पूछ रहे थे या आउट ऑफ द स्कोप भी पूछ रहे थे? इफ यू कैन टॉक लिटिल बिट. They were asking mainly from the language you have mentioned। तो मेरा जावा था, तो जावा से क्वेश्चन पूछ रहे थे मैक्सिमम। फर्स्ट दे आस्क्ड मी अबाउट व्हाट इज JDBC, एंड मुझे नहीं पता था कि JDBC क्या होता है, क्योंकि मैंने जावा डेवलपमेंट नहीं किया था। तो मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गया। तो सर से बोले कि सर सॉरी आई डोंट नो। देन दे मूव ऑन एंड आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम DBMS, OOPS, SQL, linear data structure like linked list, others. So I think that was your first interview. TCS was the first interview, or you have appeared for other interview also earlier? No, I have appeared for interview in Strivo and American Megadens. Yeah. So I think you was also part of our mock interview, na? So Yeah, yeah. if you can That was very highlight helpful. how was that, means some experience. That was very helpful for me. Uh, it gave me a lot of confidence during the interview. Yeah, so just a small notice to all of you that if you want to schedule your mock interview, means if you have been selected for interview and want to schedule, then you can just fill the mock interview form which will be in the description. And this is not an advertisement. The main thing that I want to tell that you should have idea about the interview. Okay, especially जिन्होंने भाई कोई भी अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है, you should know that how the interview went and किस तरह से. So we'll provide complete guidance, feedback and resume review, all those things. So if you want, you can fill the form, and this is not advertisement. मैं कहूँगा अगर आपको नहीं करना है तो आप अपने फ्रेंड्स को ही इंटरव्यू दीजिए या कोई अदर यूट्यूबर जिसको देना है, बट यू शुड अपीयर फॉर एटलीस्ट वन इंटरव्यू बिकॉज इट विल गिव योर कॉन्फिडेंस. ओके, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन द रियल इंटरव्यू एंड इंक्रीज योर चांसेस. आई एम राइट समीर? Yes, या पहले आप दिए होंगे उसके बाद दिए होंगे तो कुछ डिफरेंस तो आया ही होगा मॉक इंटरव्यू से. हाँ।
isn't it? प्रैक्टिस ये या क्वांट हो या इंटरव्यू, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा. Yeah, exactly. So let me come to some HR questions. So HR question किस तरह से पूछा गया था? Means how many questions were there? HR question, as I remember, 2 to 5% they asked me about my intro, then my family background, my education background, um, and then why I want to join TCS. That. Yeah. So if you can follow our the I think PDF which I have shared in group, that will be also beneficial. I have covered almost all HR question. Main thing that you should be confident enough and you should have good communication skill in Yeah, interview, isn't it? yeah, Just you have to balance yeah. it properly. HR के लिए थोड़ा Your सा confidence matters a lot. या एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पार्ट जरूर सभी लोग देख के जाइएगा जिनका होगा. Okay, Yeah. so thanks Samim for sharing your interview experience. Now let me give some final tips. Any three tips you want to give to those who have interview further और जिनका भाई अभी तक एग्जाम ही नहीं है उनके लिए अगर आप देना कुछ चाहें, three tips that will be helpful for them. Mm. I would say prepare consistently. The earlier you start, the more time you will get. Uh, and if you are late, don't panic. Just use the time properly with a proper plan. It is easy to crack the TCS NQT. And for the second tip, I will give focus on aptitude and coding. And practice as much as you can, because the one part, the practice is required. Use previous year questions. And the free resources whatever you got. And for 30 I want to say that don't panic, um, be confident whatever the result, accept it, and um, wish for the best result always. Yeah, thanks Samim for sharing this wonderful experience and all the best for the future journey, bro. Thank you. Yeah, thank you.